So, good evening to the students. This is the new lecture of the topic flow through the pipe. And my lecture is on water hammer in the pipe. You understand? अब वाटर हैमर है क्या? व्हाट इज द वाटर हैमर? इसके बारे में इसका कंसेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे. फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज वाटर हैमर, what is the reason behind that, why it occurs, and all these concepts today I will cover in this lecture. You understand? So I would like to say that everybody should pay 100% attention to the lecture so that you can understand its concept quite clearly. You understand? So water hammer, देखिए how it causes and what is the water hammer. First we will discuss about that. So let us say that this is your tank and it is filled with the water. At the one end of the tank there is a pipe, and at the other end the wall is fitted on the pipe. You understand? So we can say, consider a pipeline. This is a pipeline. I am saying here AB is the pipeline and water is flowing through this pipe AB. So definitely it is having certain velocity. इसका कुछ velocity होगा इसका. With some velocity the water is flowing in the pipe. You understand? So what happens when we suddenly close the valve here? The valve which is provided at the other end of the pipe, that is provided to regulate the flow. You understand? Regulate flow means to increase the flow, to decrease the flow, or sometimes to stop the flow. You understand? So this is the function of the valve which is provided at the other end of the pipe. Water is flowing in the pipe with some velocity, and when we suddenly close the valve, so what happens? When we close the valve, the flowing water which is flowing in the pipe, it stops to flow. You understand? Immediately, suddenly it stops to flow. So during that period, जब ये immediately फ्लो स्टॉप होगा, उस वक्त क्या होगा कि we will you can say heard, or we will come to know that there is a blow, hammering like blow in the pipe. There is a hammering like blow in the pipe when the valve is completely stopped, because the water that is flowing with some momentum, with some velocity, there is a momentum there, and when we stop the valve, momentum becomes zero, and that will develop the hammering like blow in the pipe. You understand? This is the layman definition which I have given to you. आपको एक हैमरिंग की आवाज जो है आपको सुनाई देगी. उसमें वो क्यों होगा? क्योंकि when the water is flowing in the pipe, और जब हम कंप्लीटली इसको स्टॉप करेंगे तो एक तो इसका फोर्स प्रोड्यूस होगा विच विल एक्ट ऑन द वॉल ऑफ द पाइप और ऑन द पाइप, एंड when the water will stop to flow, the momentum that becomes zero. Momentum of the flowing water that becomes immediately zero. You understand? So due to all these things, what happens that we notice that there is a blow, hammering like blow in the pipe. तो ये जो आपका है, दिस इज कॉल्ड द वाटर हैमर. यू अंडरस्टैंड? अब सेकंड चीज है, बाल को तो आपने स्टॉप किया, क्लोज किया, पानी स्टॉप हो गया. अब ये हैमरिंग का इफेक्ट, हाउ वी हैव गॉट दिस effect of the hammering? Because when we close the valve and water will stop, there will be the production of the high intensity pressure waves. क्या होगा? High intensity pressure waves produce होंगी which will move in the reverse direction in the flow of the pipe. जो पाइप का फ्लो होगा उसके फ्लो के रिवर्स डायरेक्शन में
जो प्रेशर वेव्स प्रोड्यूस होंगी विद हाई इंटेंसिटी दैट विल फ्लो, दैट विल जनरेट हियर एंड दे आर हैविंग सम सर्टन वेलोसिटी, यू अंडरस्टैंड। तो ये आपका हैमरिंग, वाटर हैमरिंग क्या है? व्हेन वी विल स्टॉप द फ्लो ऑफ द वाटर बाय क्लोजिंग द valve, you can say there is the generation of the pressure waves, right? High intensity pressure wave that causes the hammering there, you understand this? अब इसको हम मैथमेटिकली देखते हैं कि हाउ द हैमरिंग विल अकर, ये हैमरिंग जो है कैसे अकर होती है, दैट वी विल सी मैथमेटिकली, यू अंडरस्टैंड। बाय द वाटर हैमरिंग इज डेवलप्ड इन द पाइप, राइट। तो मैथमेटिकली देखते हैं, ये कैप्शन लिखते हैं हम पर, वाई द वाटर हैमरिंग is developed in the pipe। अब देखो, अब हम इसको टेक्निकली या मैथमेटिकली वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। थ्योरेटिकली तो मैंने आपको बता दिया, अब जो मैथमेटिकली इसलिए कैसे हैमरिंग होती है वो हम देखते हैं, हाउ इट हैपेंस लाइक दिस। जस्ट अंडरस्टैंड, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली आई टोल्ड यू दैट दिस इज द टैंक एंड वन एंड ऑफ द टैंक इज कनेक्टेड विद द पाइप, द अदर एंड ऑफ द पाइप इज फ्री, and at the end of the pipe we put the valve to regulate the flow of the water, you understand? The water which is flowing in the pipe, say that is flowing with the velocity v, you understand? जहां तक जो पानी है that is flowing with the velocity v। Now come to this point here where we have put the valve, then we will suddenly close the valve, so definitely valve will take some time to close। Suppose I say that t is the time taken by the valve to close the pipe, you understand? So jump, I will suddenly close the valve, what happens? The flow of the water that will stop, means क्या मतलब हुआ इसका? The water which is flowing with the velocity v, its velocity becomes zero, you understand? उसका जो फाइनल वेलोसिटी, इस पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा? जीरो होगा इन टाइम t सेकेंड्स, यू अंडरस्टैंड? जहां तक आपको चीजें समझ आ गई तो लिखते हैं इनिशियल वेलोसिटी, जहां पे नोट कर लीजिए इनिशियल वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑफ द फ्लोइंग वाटर इन द पाइप। तो डेफिनेटली वो इनिशियल वेलोसिटी मैं ले लेता हूं उसको, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग वाटर इन द पाइप क्या थी? दैट इज इक्वल टू बी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फ्लोइंग वाटर इन द पाइप बी थी। सेकंड है ड्यू टू closure of valve completely, जब हम वाल्व को कंप्लीटली क्लोज करते हैं तो क्या होगा? ऐसे जहां पे मैं इसको कह देता हूं कि ये फाइनल वेलोसिटी जहां पे होगी, जब वाल्व क्लोज करेंगे तो क्या होगा? पानी आपका फ्लो करना स्टॉप करेगा, यू अंडरस्टैंड? जब पानी फ्लो करना स्टॉप करेगा तो उस वक्त जो वेलोसिटी है आपकी, फाइनल वेलोसिटी आप कह सकते हैं v बिकम्स दैट ई इक्वल टू जीरो। और ये जो इनिशियल वेलोसिटी और v वेलोसिटी के बीच में टाइम है, दैट इज टाइम t। ये टाइम t क्या है? दिस आई टोल्ड यू, टाइम t, दिस इज द टाइम टेकन बाय द valve टू कंप्लीटली क्लोज्ड। कंप्लीटली क्लोज करने के लिए बाल को जितना टाइम लगता है, से दैट टाइम इज टेकन एज टाइम t, यू अंडरस्टैंड? सो आपका क्या होगा?
there is a rate of change of velocity, you understand? So what happens there? There is a rate of change of velocity, right? तो rate of change of velocity क्या होगा? Rate of change of velocity, that is equal to b minus 0 upon t, right? b minus 0 upon t, that is the rate of change of velocity. So when there is a change in the velocity, so according to the Newton's second law of motion, there is a force. According to Newton's second law of motion, when there is a rate of change of velocity or change in velocity, there will be the force. So you can say according to Newton's second law of motion, the force will act. तो Newton's second law of motion क्या है? F is equal to m into a. This is the Newton's second law of motion. F is equal to m into a. और जो आपका a होगा, जहां पे a आपका एक्सेलरेशन नहीं है, जहां पे a आपका क्या है? रिटार्डेशन है. यू अंडरस्टैंड? a क्या है जहां पे? रिटार्डेशन है. बिकॉज वाटर इज फ्लोइंग एंड वी हैव कंप्लीटली स्टॉप द वाटर. यू अंडरस्टैंड? तो जहां पे क्या होगा? रिटार्डेशन होगा. तो दैट इज डिनोटेड बाई ए ऑल्सो, राइट? तो ये किसके बराबर होगा? दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज b अपॉन t, राइट? जो मैंने निकाला जहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, that is equal to, you can say, a retardation. You understand this? समझा गया ये? So it means that F is equal to m means mass of the water. m क्या है? पानी का मास है, वाटर का मास है, एंड b अपॉन t. यू अंडरस्टैंड? तो जहां से आपने देखा, यू हैव सीन दिस practically, you have seen this, and analytically we have proved this thing, that when we will close the ball and water will stop flowing, तो उसमें क्या होगा? आपका force will produce. You understand? Force will produce, and this force will act on the wall of the pipes or on the pipes, right? And due to this force, the hammering action we will notice in the pipe. You understand? तो इस फोर्स से आपका हैमरिंग एक्शन होगा. यू अंडरस्टैंड? एक तो ये आ गया, जो फोर्स जो प्रोड्यूस होगी, दैट विल डेवलप द हैमरिंग. यू अंडरस्टैंड? अब सेकंड चीज ये है, इसको तो मिटा देते हैं, इस रिलेशन को. दिस इज क्लियर टू यू? अब सेकंड थिंग, एक तो आपका फोर्स यहां पे प्रोड्यूस हुआ, ये तो आपने देख लिया. अब सेकंड थिंग क्या होगा यहां पे? अब ये जो फोर्स जो आपकी प्रोड्यूस होगी, ये जो आपकी दिस पर्टिकुलर फोर्स जो मैंने अभी यहां पे निकाला था, दिस पर्टिकुलर फोर्स F, ये जो m इंटू बी अपॉन टी, राइट? एक तो ये इससे क्या होगा? दैट विल जनरेट जो फोर्स होगी, पर्टिकुलर फोर्स, दैट विल जनरेट
हाई इंटेंसिटी प्रेशर वेव्स, राइट। क्या जनरेट करेगी? हाई इंटेंसिटी pressure waves in the pipe, right? अब हाई इंटेंसिटी प्रेशर बड़ी वेव्स प्रोड्यूस होंगी ड्यू टू दिस फोर्स, तो डेफिनेटली दीज हाई इंटेंसिटी प्रेशर वेव्स, दिस इज हैविंग सम सर्टेन वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी भी होगा, और यू कैन से दीज प्रेशर वेव्स हैविंग द वेलोसिटी ऑफ साउंड, इतनी तेज इसका वेलोसिटी होगा, दैट इज हैविंग द वेलोसिटी ऑफ द साउंड, दैट इज वेलोसिटी जो इसका होगा, वेलोसिटी ऑफ द साउंड। ये वेव्स जो हैं वेलोसिटी ऑफ द साउंड से क्या करेंगे? ट्रैवल करेंगे, एंड वेलोसिटी ऑफ द साउंड से, इफ आई से c is the velocity of the sound, so these pressure waves will move with the velocity of the sound c, right? अब देखिए, अब ये जो प्रेशर वेव प्रोड्यूस होंगी, तो डेफिनेटली प्रेशर वेव प्रोड्यूस जो होंगी वो कहां से स्टार्ट होंगी? जहां पे हम पानी को स्टॉप करेंगे, यू अंडरस्टैंड, जहां से हम पानी को स्टॉप करेंगे। सपोज इफ आई से जहां से लेके जहां तक जो इसका पाइप का लेंथ है वो कितना है? L इज द लेंथ ऑफ द पाइप। तो ये जो प्रेशर वेव आपकी होंगी, जहां से प्रेशर वेव आपकी generate the pressure wave like this. So the pressure wave that will generate, जो प्रेशर वेव आपकी जो जनरेट होंगी, that will move in the reverse direction of the flow in the pipe. You understand? ये रिवर्स जो फ्लो का डायरेक्शन, देखिए फ्लो का डायरेक्शन इस साइड में है, और ये जो प्रेशर वेव है that will move in the reverse direction of the flow in the pipe. तो ये रिवर्स डायरेक्शन में जहां से जहां तक फ्लो करेंगी, और उसके बाद जहां से जहां तक फ्लो करेंगी, और फिर जहां पहुंच के एट द एंड ऑफ द पाइप अगेन दे विल फ्लो, अगेन दे विल मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन। पहले वो अपोजिट टू फ्लो मूव करेंगी फ्रॉम हेयर टू हेयर, एंड देन फ्रॉम एट द एंड ऑफ द पाइप, ये जो ये वाला एंड है, एंट्रेंस ऑफ द पाइप, जहां से फिर अगेन दे विल मूव टूवर्ड्स द बॉल, जिस पोजीशन के ऊपर हमने बॉल लगाया है दोबारा ये मूव करेंगी। इट मींस, तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेंगी? हाउ मच डिस्टेंस दे विल कवर? पहले जहां से लेके जहां तक दे विल कवर द डिस्टेंस L, एंड देन फ्रॉम हेयर टू हेयर अगेन अप टू दिस they will again cover the distance L. So total distance covered by the pressure wave, that is equal to 2L. You understand? तो total distance जो pressure wave cover करेंगी वो कितना distance cover करेंगी? 2L, right? तो ये जो pressure waves होंगी, समझ आ गया ये? तो आप कह सकते हैं total, जहां पे लिख लीजिए total distance covered by the pressure waves generated, जो generated pressure waves हैं ड्यू टू द फोर्स F, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेंगे? L प्लस L, दिस इज इक्वल टू 2L. यू अंडरस्टैंड? कितना कवर करेंगे? 2L डिस्टेंस दे विल कवर. यू अंडरस्टैंड दिस? एंड दीज प्रेशर वेव्स मूव्स विद द वेलोसिटी कितना? दीज प्रेशर वेव्स विल मूव द वेलोसिटी ऑफ द साउंड सी. यू अंडरस्टैंड? ये तो मैंने आपको बताया. अब ये जो प्रेशर वेव्स होंगी ऑफ वेरी हाई इंटेंसिटी, they will exert the pressure on the pipes
आर ऑन द पाइप वॉल्स। पाइप वॉल्स के ऊपर ये प्रेशर हाई इंटेंसिटी वेव्स ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगी एंड दिस विल कॉज द हैमरिंग। यू अंडरस्टैंड? ये क्लियर हो गया कंसेप्ट आपको? हैमरिंग का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया कि जो हम प्रैक्टिकली तो हम देखते हैं कि पाइप में फ्लो कर रहा है, तो हम सडनली अगर बॉल को क्लोज करते हैं तो उस केस में जो आपकी प्रेशर वेव्स होंगी दैट इज़ वेरी हाई इंटेंसिटी, और उस वक्त आपको जो साउंड उसकी सुनाई देगी या ब्लो जो उसका होगा वेरी हाई इंटेंसिटी ब्लो, और यू कैन से सो इट्स नेम इज गिवन एज हैमरिंग, मीन्स हैमर लाइक ब्लो, वी विल हर्ट लाइक दिस, राइट? बट this blow, this hammering action that will caused by the force which will act on the ball of the pipe, and that force क्या प्रोड्यूस करेगी, कैसे एक्ट होगा? क्योंकि उस फोर्स से हमारा क्या होगा, एक पर्टिकुलर फोर्स जो होगी जो वहाँ पे प्रोड्यूस होगी दैट विल जनरेट द हाई प्रेशर वेव्स। और हाई प्रेशर वेव्स जो है उनका जो दैट विल पहले वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो मूव करेगी जहां से बॉल से, और फिर जहां पर पहुंच गए अगेन दे विल मूव टुवर्ड्स दिस साइड एट द टुवर्ड्स द बॉल के ऊपर द्वारा। तो टोटल डिस्टेंस दैट इज कवर्ड बाय दिस दैट इज इक्वल टू L प्लस 2L। यू अंडरस्टैंड? जहां तक चीजें क्लियर हो गई आपको? अब देखिए इसमें एक पॉइंट एक ये आता है सडन क्लोजर ऑफ द बॉल एंड ग्रेजुअल क्लोजर ऑफ द बॉल। पहले हम टाइम टेकन के बारे में देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट जहां पे रखिए, इफ वी हैव closed the ball before traveling the waves, right? If we have closed the ball before traveling the pressure wave, the distance 2L। तो पहला क्या है? Before traveling the pressure waves, distance 2L। 2L कैसे है? मैंने जैसे आपको बताया प्रेशर वेव से लिखो। मैंने जैसे आपको बताया कि प्रेशर वेव्स कितना डिस्टेंस कवर करेंगी, जहां से प्रेशर वेव जहां से आएंगी तो दिस डिस्टेंस इज L, फिर जहां से फिर इस साइड के ऊपर जाएंगी ये डिस्टेंस L, तो L प्लस L 2L। अगर हम बॉल को सडनली क्लोज कर लेते हैं और जितना टाइम पीरियड प्रेशर वेव्स को ये 2L डिस्टेंस कवर करने के लिए लगता है, उससे पहले हमारा बॉल क्लोज हो जाता है। मतलब जितना टाइम हमें चाहिए, जितना टाइम वेव्स को चाहिए 2L डिस्टेंस कवर करने के लिए, बिफोर दैट टाइम इफ वी विल क्लोज द बॉल, तो इस केस में ये जो आपका क्लोजर ऑफ द बॉल होगा ये आपका होगा सडन क्लोजर ऑफ बॉल। यू अंडरस्टैंड? इसको हम क्या कहते हैं? सडन क्लोजर ऑफ द बॉल मीन्स ये जो आपका टाइम टेकन होगा, अगर टाइम टेकन आपका ये T इज द टाइम टेकन टू क्लोज द बॉल। T क्या था? टाइम टेकन टू क्लोज द बॉल। इफ इट इज लेस देन 2L अपॉन C, इफ इट इज लेस देन 2L अपॉन C, ये 2L क्या है? 2L आपका डिस्टेंस है, C क्या है? वेलोसिटी है। तो यही तो फार्मूला होता है टाइम का, राइट?
टाइम किसके बराबर होता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। और वेलोसिटी को हम कैसे लिखते हैं? जैसे ये वेलोसिटी है, इसका फार्मूला लिखता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो बेसिक फार्मूला है इसका, राइट। और अगर आपने टाइम निकालना है, अगर इफ यू हैव टू क्लोज द फाइंड द टाइम, दिस इज इक्वल टू एस अपॉन बी, यू अंडरस्टैंड। तो एस क्या हो गया? 2l इज एस। एस आपका क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल कितना है बाय द वेव्स, दैट इज 2l। और वेलोसिटी क्या है? c। c इज द वेलोसिटी ऑफ द प्रेशर वेव्स, यू अंडरस्टैंड। तो अगर ये कंडीशन आपको मिलती है t लेस देन 2l अपॉन c, you can say this is the sudden closure of the ball, you understand। second है, अगर if we have closed the ball, अगर जितना टाइम हमें इसमें चाहिए इसको बंद करने के लिए, so if time taken to close the ball is more than the time taken by the pressure wave। कहने का मतलब क्या है? if time taken to close the ball, if time taken to close the ball is more than the time taken by the pressure waves to cover the 2l distance। 2l डिस्टेंस ही कवर करेंगे, टू कवर 2l डिस्टेंस। अगर आपका टाइम ज्यादा है, जो वेव्स ने 2l डिस्टेंस को कवर करना है, अगर टाइम आपका ज़्यादा है तो उस केस में, ऐसे केस में हम क्या कहते हैं? ग्रेजुअल क्लोजर ऑफ द बॉल, यू अंडरस्टैंड। तो ये जो केस आपका होगा, दिस इज कॉल्ड द ग्रेजुअल क्लोजर ऑफ बॉल, यू अंडरस्टैंड। ये जो क्या है? दिस इज कॉल्ड द ग्रेजुअल क्लोजर ऑफ द बॉल। और अगर टी के केस में लिखें तो इसमें आपका टी हो जाएगा टी ग्रेटर देन 2l अपॉन c, यू अंडरस्टैंड। टाइम टेकन मोर देन 2l अपॉन c, राइट। राइट। सो जहां तक चीजें आपको क्लियर हो गया, ऑल द थिंग्स आर क्लियर टू यू। अब नेक्स्ट आते हैं हम नॉकिंग के ऊपर। व्हाट इज नॉकिंग? चलो, सो लेट अस अंडरस्टैंड द टर्म नॉकिंग। इसमें एक और आएगा कि नॉकिंग भी आपने सुना होगा। अब इस टर्म को हम अंडरस्टैंड करते हैं, व्हाट इज नॉकिंग हियर। सो ऑल द थिंग्स आर को रिलेटेड टू ईच अदर। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से को रिलेटेड हैं। देयर इज नॉट मच डिफरेंस इन द कंसेप्ट। Now let us understand knocking. अब इसको नॉकिंग को अंडरस्टैंड करते हैं। व्हाट इज नॉकिंग?
procedure, everything is same. They are all correlated. You understand? There is not much difference. Everything is same. But here we will heard the sound. टॉकिंग क्या है? हम एक साउंड को हर्ड कर सुनते हैं, करते हैं. दिस इज ऑलमोस्ट अ हैमरिंग एक्शन है, सेम, जहाँ पे नॉट मच डिफरेंस देयर. यू अंडरस्टैंड? तो एक साउंड है, वाटर इज फ्लोइंग इन द पाइप. वी हैव टेकन दिस एग्जाम्पल. पानी जो है फ्लो कर रहा है पाइप में. valve is here, we close the valve and suddenly the water will stop to flow. You understand? यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर है. पानी को हमने क्या किया? स्टॉप कर दिया. वाल्व को क्लोज किया, पानी स्टॉप हो गया. तो इसमें जो देखिए, जब पानी आपका फ्लो कर रहा है, यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, तो वाटर इज फ्लोइंग हियर. इफ आई से m इज द मास ऑफ द वाटर, फ्लोइंग वाटर. m क्या है? मास of flowing water. m is the mass of the flowing water. और जो b आपकी क्या है? This is the velocity of flowing water in the pipe. ये सारी चीज़ें पाइप में ले रहा हूँ मैं, ठीक है? flowing water लिख लो in pipe. You understand? So it means that there is a momentum. Water is flowing with some momentum. Mass into velocity. क्योंकि momentum आपका क्या है? What is your momentum? Momentum आपका है mass into velocity. You understand? So there is a momentum, or water is flowing with this momentum, mass into velocity. V is the velocity of the flowing water, m is the mass. When we suddenly close the valve, जब valve को हम suddenly close करते हैं तो जो आपकी velocity है वो क्या हो जाएगी? आपकी जीरो हो जाएगी. You understand? तो ये जो आपका मोमेंटम होगा, फ्लोइंग वाटर का जो मोमेंटम होगा, वो सडनली क्या होगा? वो आपका जीरो हो जाएगा. बी पुट करो, मोमेंटम जीरो हो जाएगा. तो देर इज अ डिस्ट्रप्शन इन द मोमेंटम हियर. यू अंडरस्टैंड? मोमेंटम क्या में क्या होगा? डिस्ट्रप्शन होगा. हाई इंटेंसिटी प्रेशर वेव प्रोड्यूस होंगी. और जो हाई इंटेंसिटी प्रेशर वेव प्रोड्यूस होंगी, दैट विल मूव विद द वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव्स. जो प्रेशर वेव की वेलोसिटी होगी, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव. और वो इतनी हाई इंटेंसिटी और हाई वेलोसिटी से मूव करेंगी कि दैट विल क्रिएट द नॉइज, दैट विल क्रिएट द साउंड. यू अंडरस्टैंड? ये जो आपको साउंड सुनाई देगी या नॉइज जो होगा, दिस प्रोसेस यू कैन से दिस इज द नॉकिंग. यू अंडरस्टैंड? ये प्रोसेस क्या है? इसको हम क्या बोलते हैं? नॉकिंग. आर यू कैन से नॉकिंग और हैमरिंग, बोथ आर ऑलमोस्ट सेम थिंग. इससे नॉकिंग तो होगा, तो हैमरिंग तो इस सेक्शन से होती ही होती है. यू अंडरस्टैंड दिस? इट ऑल्सो कॉजेज द हैमरिंग. और नॉकिंग होगी कि जब प्रेशर वेव आपकी हाई वेलोसिटी से मूव करेंगी. हाई वेलोसिटी कितना होगा? वेलोसिटी ऑफ द साउंड. वो जो वेलोसिटी ऑफ द साउंड जो होगी, प्रेशर वेव एक साउंड क्रिएट करेंगी. हैमरिंग था कि जब वो उसके ऊपर बॉल के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगी तो पाइप के बॉल से जो आपकी साउंड सुनाई देगी, दैट यू कैन से दैट इज द हैमरिंग ऑफ द पाइप, वाटर हैमर. बट ये आपको जो साउंड जो सुनाई देगी, दैट इज द साउंड ऑफ द प्रेशर वेव. यू अंडरस्टैंड? ये जो नॉइज या साउंड आपको सुनाई देगा, दैट इज द साउंड ऑफ द प्रेशर वेव्स, बिकॉज द प्रेशर वेव इज मूविंग विथ वेरी हाई वेलोसिटी और द वेलोसिटी ऑफ द साउंड. तो ये आपको जो साउंड सुनाई देगी, दिस इज कॉल्ड द नॉकिंग. यू अंडरस्टैंड? इसको हम नॉकिंग बोलते हैं. तो इसको भी थोड़ा समझ आनी चाहिए
हैमरिंग और नॉकिंग में दिस इज द डिफरेंस। हैमरिंग जो है, जो आपको ब्लो की आवाज़ सुनाई देगी जब वाटर प्रेशर जो आपको बाल के ऊपर पड़ेगा वो वाटर का होगा, और जब हाई प्रेशर वाटर इसके ऊपर टकराएगा तो वाइब्रेशंस होंगी और उसमें आपको हैमरिंग इफेक्ट यू विल हर्ड सी देयर। बट इन केस ऑफ दिस नॉकिंग, वो जो आपको नॉइज सुनाई देगा, वो जो आपको आवाज़ सुनाई देगी, दैट इज द साउंड ऑफ द प्रेशर वेव विच इज मूविंग विद वेरी हाई वेलोसिटी, और यू कैन से द वेलोसिटी ऑफ द साउंड। यू अंडरस्टैंड? तो नॉकिंग हो गया। अब जो प्रेशर, इससे क्या होगा, प्रेशर राइज भी आपका होगा ड्यू टू हैमरिंग। क्या होता है वहाँ पे प्रेशर राइज होगा। तो जो प्रेशर राइज है दैट डिपेंड्स अपॉन सम फैक्टर्स। जो प्रेशर राइज वहाँ पे होगा तो वो किसके, कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ड्यू टू हैमरिंग लिख लेते हैं। ये तो हो गया नॉकिंग वाला, ये इतना ही था, इसमें कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है। तो मेन चीज़ तो हम हैमरिंग ऑफ द पाइप पढ़ रहे थे। तो ड्यू टू हैमरिंग or hammering causes the pressure rise. Due to hammering there is pressure rise, right? हैमरिंग से क्या होगा, आपका प्रेशर राइज हो। यू अंडरस्टैंड? ड्यू टू हैमरिंग राइट, तो प्रेशर राइज होगा। अब इट डिपेंड्स अपॉन दीज फैक्टर्स। ये किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन, फर्स्ट तो करता है आपका वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लो, और फ्लूइड लिख लो, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लो इन पाइप, राइट। तो पहले तो ये वेलोसिटी के ऊपर, देन द लेंथ ऑफ द पाइप, सेकंड इज लेंथ ऑफ द पाइप। आप फ्लूइड की जगह वाटर फ्लो कर लीजिए, क्योंकि हम वाटर हैमरिंग के पढ़ रहे हैं। वाटर फ्लो, दूसरा आपका है लेंथ ऑफ पाइप, थर्ड है टाइम टेकन टू क्लोज, टाइम टेकन टू क्लोज द बॉल, और फोर्थ है आपका इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। फोर्थ क्या है कि जो आप मटेरियल, पाइप का मटेरियल है, तो वो डिपेंड करता है इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल्स ऑफ द पाइप। तो इलास्टिक प्रॉपर्टीज, इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल ऑफ पाइप, राइट। तो ये प्रेशर राइज जो आपका होगा ड्यू टू प्रेशर वेव्स और ड्यू टू द हैमरिंग एक्शन, these depend upon these factors: velocity of the water flow in the pipe, length of the pipe कितना है, length of the pipe ज़्यादा है कम है, that depends upon that. Time taken to close the valve, what does it mean? Whether there is a sudden closure of the valve or whether there is a gradual closure of the valve. ये दोनों केसेस आपके डिफरेंट होंगे और इस दोनों केसेस की आपकी डिफरेंट डेरिवेशंस आएंगी। यू अंडरस्टैंड? और तीसरा जो हम पाइप का मटेरियल यूज़ करते हैं उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी ये चीज़ डिपेंड करेगी, प्रेशराइज। यू अंडरस्टैंड? तो ये आपका हो गया प्रेशराइज। अब जैसे मैंने आपको बताया, सो देयर आर द टू केसेस हियर। आपके दो केसेस हैं, एक है आपका ड्यू टू द सडन क्लोजर ऑफ द वाल्व
and the second one due to the तो two cases of water hammering, two cases of water hammering are considered. तो वाटर हैमरिंग के जैसे मैंने आपको बताया दो केसेस कंसिडर कर होते हैं, यू अंडरस्टैंड. तो पहला केस था आपका ग्रेजुअल क्लोजर ऑफ वॉल, एंड सेकंड केस इज सडन क्लोजर ऑफ वॉल. एक केस होगा ग्रेजुअल क्लोजर ऑफ वॉल, एक केस होगा सडन क्लोजर ऑफ द वॉल. दैट इज टाइम टेकन लेस देन 2L/C, राइट. जब आपका टाइम टेकन दैट इज लेस देन, सॉरी नॉट लेस देन, ग्रेजुअल है ना, यस. टाइम टेकन दैट इज ग्रेटर देन 2L/C, और सडन क्लोजर में क्या होगा, टाइम टेकन लेस देन 2L/C. तो वन बाई वन हम दोनों केसेस का करेंगे. आज जो टॉपिक मैं लूँगा, आज सिर्फ मैं ग्रेजुअल क्लोजर ऑफ द बॉल का ही एक्सप्रेशन आपको करके बताऊंगा, और जो सडन क्लोजर ऑफ द बॉल है दैट आई विल टेक इन द नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि उसमें दो केसेस आ जाएंगे. फर्स्ट केस होगा व्हेन वी विल कंसिडर द रिजिड पाइप, एंड द सेकंड केस इज व्हेन द पाइप इज इलास्टिक, यू अंडरस्टैंड. तो दोनों केसेस मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूँगा और उसका एक न्यूमेरिकल भी देखेंगे. और आज जो मेरा लेक्चर होगा इसमें सिर्फ ये एक्सप्रेशन करूँगा ग्रेजुअल क्लोजर ऑफ द बॉल, यू अंडरस्टैंड. तो पहला है वाटर हैमरिंग के दो केसेस कंसिडर. जैसे मैंने कहा कि वाटर हैमरिंग वी कंसिडर द टू केसेस. वन केस इज जब आपका ग्रेजुअल क्लोजर ऑफ द बॉल होगा उस वक्त क्या कंडीशन होगी, क्या फार्मूला होगा, क्या एक्सप्रेशन होगा वाटर हैमरिंग का. और जब सडन क्लोजर ऑफ द बॉल होगा उस वक्त आपकी क्या इक्वेशंस होंगी, दे आर इंटायरली डिफरेंट. तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द ग्रेजुअल क्लोजर ऑफ द बॉल, यू अंडरस्टैंड. तो सबसे पहले हम आज आज जो फर्स्ट केस लेंगे हम ग्रेजुअल क्लोजर ऑफ बॉल, T greater than 2L/C, राइट. अब देखिए, जब हम सेम प्रोसीजर, सो दिस इज द सेम केस आई एम टेकिंग हेयर. सिर्फ इसमें हम क्या करेंगे, वाटर इज फ्लोइंग इन द पाइप, here ball is provided at the end of the pipe. Here I will close the ball gradually, you understand. I will close the ball gradually but completely. हम सडनली क्लोज नहीं करेंगे, बॉल को हम ग्रेजुअली क्लोज करेंगे, यू अंडरस्टैंड. तो इस केस में इस कंडीशंस में देखिए कि हमारा जो प्रेशर हेड है वो कितना आता है, यू अंडरस्टैंड. तो एक्सप्रेशन करना है हमें. देखिए एक्सप्रेशन कैसे करते हैं इसका, आप देखिए इसमें लिखिए रेजोल्यूट. ए आपका, ए सपोज आपका क्रॉस सेक्शन, ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप, ए इज क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पाइप. L
length of the pipe, right? B is the velocity of water flow in the pipe. You understand? A आपका क्रॉस सेक्शन एंड P इज द प्रेशर इंटेंसिटी. P इज द, P क्या है? प्रेशर इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर वेव्स. यू अंडरस्टैंड? अब देखिए, व्हेन वी क्लोज द वॉल ग्रेजुअली, कंडीशन क्या है? बॉल इज क्लोज्ड. जब बॉल को हम ग्रेजुअली क्लोज करेंगे, इट मीन्स दैट वी विल टेक more time t than the time taken by the pressure waves to cover the distance to L. You understand? So this is the definition of the ball close gradually. तो इस केस में क्या होगा? फर्स्ट ये होगा, जो प्रेशर वेव्स प्रोड्यूस होंगी ऐसे केस में, when the wall is closed gradually, pressure waves have low intensity of pressure. ऐसे कर लो, इनका जो प्रेशर वेव जो होगी लो इंटेंसिटी होगा, इनका मीन्स उनका जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? कम होगा. यू अंडरस्टैंड? बिकॉज वी आर क्लोजिंग द बॉल ग्रेजुअली. सेकेंड, इसमें क्या होगा? इसमें जो स्ट्रेन एनर्जी है जो प्रोड्यूस होगी, स्ट्रेन एनर्जी, वी विल अज्यूम दैट स्ट्रेन एनर्जी इज नेग्लिजिबल. यू अंडरस्टैंड? तो इस केस में हम स्ट्रेन एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी, स्ट्रेन एनर्जी को हम बहुत ज़्यादा कम होगी, क्योंकि प्रेशर एनर्जी जो है, प्रेशर वेव्स एनर्जी कम है, तो स्ट्रेन एनर्जी को हम नेग्लिजिबल लेंगे. सो ये दो कंडीशंस हमें वी कम टू नो, वी विल गेट जब हमारा बॉल क्लोज ग्रेजुअली होगा. यू अंडरस्टैंड? अब देखिए, इसको मिटा देते हैं, इसमें तो कोई सो व्हेन वी विल क्लोज द बॉल्स, जब हम जहां पे बॉल को क्लोज करेंगे, यू अंडरस्टैंड, तो वाटर जो था वो जैसे आपको बताया दैट इज फ्लोइंग विद द वेलोसिटी v, एंड व्हेन वी विल क्लोज द बॉल, चाहे वो ग्रेजुअली है चाहे सडनली है, लेकिन अल्टीमेटली वी आर क्लोजिंग द बॉल. सो इट मीन्स दैट द वाटर विल स्टॉप टू फ्लो. तो so I was telling you that sorry, when I close the valve here, sorry, water stops to flow here. तो आपका जो काइनेटिक एनर्जी, इस केस में जो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? लॉस्ट होगा, राइट? वी विल लूज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पानी. काइनेटिक एनर्जी क्या? बिकॉज वाटर इज फ्लोइंग, सो इट इज हैविंग काइनेटिक एनर्जी, एंड व्हेन इट विल स्टॉप, काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट पर सेकेंड. कितना लॉस होगा पर सेकेंड? काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड आई एम टेकिंग, बिकॉज आई एम जस्ट कंसिडरिंग द टाइम टेकन.
सो काइनेटिक एनर्जी लास्ट पर सेकेंड, कितना काइनेटिक एनर्जी लास्ट करेगा, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू मास फ्लो रेट इंटू बी. यू अंडरस्टैंड, बिकॉज द वाटर इज फ्लोइंग विद द वेलोसिटी v एंड मास फ्लो रेट क्या हो गया यहाँ पे, मास फ्लो रेट दैट इज इक्वल टू एरिया इंटू बी. यू अंडरस्टैंड, रो इंटू मास फ्लो रेट, रो इंटू एरिया इंटू बी, बिकॉज आपको पता है ए इंटू बी दिस इज इक्वल टू क्यू, राइट. तो दिस इज मास फ्लो रेट. तो मास फ्लो रेट की जगह हम रो इंटू ए इंटू बी लिख सकते हैं. तो आप कह सकते हैं इक्वटा दो, हाफ इंटू रो इंटू ए इंटू बी एंड इंटू बी स्क्वायर. तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी लास्ट पर सेकेंड व्हेन वी विल क्लोज द valve. यू अंडरस्टैंड. तो काइनेटिक एनर्जी, और ये जो आपकी काइनेटिक एनर्जी लास्ट होगी, ये जो आपका काइनेटिक एनर्जी लास्ट होगा, दिस लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट विल जनरेट द प्रेशर एनर्जी. क्योंकि एज यू नो दैट एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, जब एक एनर्जी कोई लॉस होगी तो वो दूसरे में कन्वर्ट होगी. यू अंडरस्टैंड. सो ये जो काइनेटिक एनर्जी लास्ट पर सेकेंड ये है, दैट विल जनरेट द प्रेशर एनर्जी. समझ आ गया. प्रेशर एनर्जी द्वारा कैसे जनरेट होगी, काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी तो प्रेशर एनर्जी जनरेट होगी. यू अंडरस्टैंड दिस. तो इसका मतलब है कि इसमें हमें प्रेशर हेड वी हैव टू फाइंड आउट, प्रेशर एनर्जी जनरेट होगी. यू अंडरस्टैंड दिस. अब इसकी एक्सप्रेशंस के ऊपर जहां तक तो चीजें ठीक हैं, तो अब देखिए यहां पे m क्या है, मास ऑफ द वाटर फ्लोइंग इन द पाइप. जहां से आपकी एक्सप्रेशन स्टार्ट हुई थी, ये मैंने आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी लॉस जो है, क्योंकि इस केस में जो काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी दैट विल राइज द प्रेशर एनर्जी. तो m जो है मास ऑफ द वाटर फ्लोइंग इन द वाटर, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रो इंटू एरिया इंटू एल, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द पाइप. मास को क्या लिखते हैं, रो इंटू वॉल्यूम. डिस्चार्ज क्या है, वॉल्यूम है, तो इसको हम इस केस में लिखेंगे रो इंटू ए इंटू एल, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द पाइप, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप. यू अंडरस्टैंड. यहां तक क्लियर है. अब देखिए, सेम थिंग एज द वाटर इज फ्लोइंग हेयर एंड वी हैव क्लोज द valve हेयर. तो इस केस में वही आपका रिटार्डेशन, जहां पे क्या होगी, वो रिटार्डेशन आपकी होगी, बिकॉज रिटार्डेशन क्या है, ए, वो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, बिकॉज वाटर इज फ्लोइंग विद द वेलोसिटी बी एंड व्हेन वी क्लोज द valve हेयर द वाटर विल स्टॉप फ्लोइंग, तो वेलोसिटी बिकम्स जीरो. ये पीछे भी मैंने करके दिया. तो रिटार्डेशन आपकी होगी आपकी b माइनस टी, दिस इज रिटार्डेशन, राइट. जैसे वहां पे किया था मैंने, यहाँ पे देखिए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी, अपॉन टी, एंड दिस इज मैंने लिखा था a. तो a जहाँ पे रिटार्डेशन है, तो रिटार्डेशन इज इक्वल टू b अपॉन डी. यू अंडरस्टैंड. तो एज पर द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो F आपको पता है, दिस इज इक्वल टू फोर्स किसके बराबर है, m इंटू ए. तो ये आप m को आप ऐसे लिखिए, रो इंटू ए इंटू एल इंटू बी अपॉन टी. तो ये आपका फोर्स का इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया. यू अंडरस्टैंड. दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ
यहां से मिटा देते हैं। अच्छा, जैसे मैंने लिखा कि P इज द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर वेव्स जनरेट, जो प्रेशर वेव आपकी जनरेट होंगी उसका इंटेंसिटी क्या है, P इज द इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर। तो उस केस में आपका फोर्स क्या होगा, जो प्रेशर वेव होगी वो क्या है, पूरे क्रॉस सेक्शन के ऊपर एक्ट करेंगे। तो जो फोर्स इस केस में आपको मिलेगा, दिस इज इक्वल टू P इंटू ए, राइट। दिस इज द फोर्स P इंटू ए, एंड दिस यू कैन से इक्वेशन नंबर सेकंड, राइट। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया। इक्वेट कर लो, इक्वेटिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो जे आपका आ गया रो इंटू ए इंटू एल बी अपॉन टी, दिस इज इक्वल टू P into A. You understand? This is equal to P into A. Right? Therefore प्रेशर किसके बराबर आया, रो इंटू एल इंटू बी अपॉन टी। यू अंडरस्टैंड? तो प्रेशर दिस इज इक्वल टू you understand this? Pressure this is equal to rho into L into B upon T, इसको मिटा दीजिए। Therefore pressure head, तो प्रेशर हेड जो आपका होगा ये कितना इसमें राइज होगा, सो दैट इज इन केस ऑफ क्या करेंगे, तो प्रेशर हेड आपने निकालना है। प्रेशर हेड, तो प्रेशर हेड आपका क्या होता है, प्रेशर हेड दिस इज इक्वल टू P अपॉन रो जी, दिस इज योर प्रेशर हेड। ये जो आपकी इक्वेशन थर्ड आई, सपोज दिस इज योर इक्वेशन थर्ड, मैं इस इक्वेशन को डिवाइड करता हूं दोनों साइड से रो बाई जी से, राइट। सो आप कह सकते हैं डिवाइड इक्वेशन थर्ड बाई रो बाई जी बोथ साइड, दोनों साइड्स आप रो बाई जी से इसको डिवाइड करें तो आपको क्या मिलेगा, आपको P बाई रो जी दिस इज इक्वल टू रो इंटू एल इंटू बी अपॉन टी इंटू रो इंटू जी। ओ और रो जी कैंसिल हो गया, तो प्रेशर हेड आपको आएगा इसमें L इंटू बी अपॉन टी इंटू जी। यू अंडरस्टैंड? तो ये आपका प्रेशर हेड होगा। दिस इज और यू कैन से प्रेशर हेड को मैं H के साथ डिनोट करूं, H दिस इज इक्वल टू L इंटू बी टी इंटू जी। सो दिस इज योर प्रेशर हेड in case of gradual closure of the ball. You understand? In case of gradual closure of the ball, ये आपका प्रेशर हेड जो आपका राइज होगा, that is your pressure head. You will get like this. You understand? So this is the equation. तो आज हम यही डेरिवेशन अप टू ग्रेजुअल क्लोजर ऑफ द बॉल तक ही करेंगे। जो इसका सेकंड लेक्चर होगा उसमें हम सडन क्लोजर ऑफ द बॉल
और उसमें भी आपके दो डेरिवेशंस बनेंगी। एक में हम पहले रिजिड पाइप के ऊपर सडन क्लोजर ऑफ द बॉल उसका ड्राइव करेंगे इक्वेशन, और फिर आपका हम इलास्टिक पाइप लेंगे उसका, और उसका दोनों का डेरिवेशन इंटायरली डिफरेंट होगा। यू अंडरस्टैंड। तो आई थिंक आज जो पहला लेक्चर था जिसमें आपको ये हैमरिंग इन द पाइप क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, ये व्हाई इट हैपन्स, इसमें किस तरीके से हम चीज़ें जो हैं होती हैं, किस तरीके से प्रेशर इंक्रीज होता है, प्रेशर वेव्स क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने कंप्लीट कर लिया। यू अंडरस्टैंड। तो वाटर हैमरिंग, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड टॉपिक टू अंडरस्टैंड और वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। तो इसको आप अच्छे तरीके से करें, और इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो भी आप देखना ना भूलें, क्योंकि जब तक वो लेक्चर आपका कंप्लीट नहीं होता है तो ये आपका जो टॉपिक है वाटर हैमर का कंप्लीट नहीं होगा। दिस आई हैव ओनली टेकन एज अ ग्रेजुअल क्लोजर ऑफ द बॉल, राइट। तो सडन क्लोजर ऑफ द बॉल दैट आई विल टेक इन द नेक्स्ट लेक्चर विद वन numerical also, so that we can understand it well. So thank you very much. So this is enough for today, and next lecture I will discuss about the sudden closure of the ball, right? So thank you very much.